We then talk about another concept that is amplitude, rather the first concept is amplitude modulation. वो भी हमने डिस्कस किया था. So this is lab 2 for G2 actually. I hope G1 will follow accordingly according to this lab कैसे क्या हो रहा है, because उनका थोड़ा डिस्टर्ब हो गया बीच में. So amplitude modulation की definition हमने देखी थी क्या? हाँ वो भी देखी थी. But just repeat or reiterate that. It is the process in which the amplitude of the carrier will be changed linearly in accordance with the message signal amplitude variations. अब AM के भी further types है. So our main heading is AM. By AM we mean amplitude modulation. ठीक है जी? और amplitude modulation का मतलब ये है कि carrier का amplitude vary होगा with respect to amplitude of message signal. अगर हेडिंग होती FM तब क्या वैरी होता? किसकी? कैरियर की फ्रीक्वेंसी वैरी होगी with respect to amplitude of message signal. ठीक है? Anyways, as of now we are at AM. So AM के भी further types है. एक है आपका multitone AM. दूसरा है आपका single tone AM. Multitone and single tone are two types based upon the components present in the message signal. असली आप देखेंगे AM के types वहाँ पे different होंगे, ये नहीं होंगे ESB, SB, SSB, SC. वो हो गया with respect to the type of the modulation. But with respect to the type of message signal, that is M of T used, with respect to with respect to the nature of the message signal used, amplitude modulation can be of two types. One is multitone AM, another is single tone AM. If I first talk about multitone AM signal, it will look like. First मुझे ये बताइए यहाँ पे M of T हम assume करेंगे आपका क्या है ये? Message signal. Your M of T is your message signal. Your C of T is your carrier signal. इसको carrier signal क्यों क्या कहें? क्योंकि आपकी मैसेज को कैरी करता है to a different place. इसमें मैसेज सिग्नल छुपी होती है इसके किसी पैरामीटर में, या एम्पलीट्यूड में, या फेज में, या फ्रीक्वेंसी. So that's why it's known as a carrier signal. And then when I combine, by the way, for AM I will use therefore ये ब्लॉक डायग्राम बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक डायग्राम है आपके लिए. For M of T being at the one side and C of T being on the another side, this block generates S of AM of T. Therefore, this block is called as AM modulator. एक AM मॉड्यूलेटर को हम दो चीजें इनपुट देते हैं. एक हो गया हमारा मैसेज सिग्नल, दूसरा हो गया हमारा कैरियर सिग्नल. इनको अंदर से मैनिपुलेट कर लेता है ये AM मॉड्यूलेटर such that ये जनरेट करेगा SAM of T, where SAM of T is the AM modulated signal. SAM of T is the AM modulated signal. SAM of T is the AM modulated signal. अच्छा, अब हम पहले ये this is the general block diagram for AM. Whether it is multitone or single tone, this has to be same. This will not change. Now when I talk about the first case, which is case A, बोल रहे हो पका कितना काम तो बैठे चिकन जस्ट बैठ. सर मैं नीचे गया था, मुझे नहीं पता था. क्यों नहीं पता था? सर मैं ग्रुप 1 में था इसलिए. हाँ तो अलग में ही है. आप आगे तो कोई मान ले आप दे दो. कौन? सर मैं तो 36 पहले थे हम ग्रुप 1 में. सर ग्रुप दिया कैसे नहीं बोला आप ग्रुप 2 में. ठीक है ना, ठीक है. वो मत छोड़ो आप सीरीज. Okay. Now assume M of T as a message signal which has multiple tones.
Therefore, carrier after modulation, that is S of AM of T का दूसरा नाम है carrier after modulation. S of AM of T का दूसरा नाम है, ठीक है, carrier after modulation. It will look like this. Important expression. AC 1 plus KA M of T. ये हमने किया था पिछली क्लास में. ओके. Cos of 2 pi FC of T. देखिए, कैरियर, मैंने इसका दूसरा नाम कहा कैरियर आफ्टर मॉड्यूलेशन, क्योंकि ट्रांसमिट क्या होता है, कैरियर ही, उसके अंदर कहीं मैसेज सिग्नल छुपा हुआ होता है, या मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड वेरिएशन है वो छुपा हुआ होता है. अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, इफ यू जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट है ये क्या है, ये आपका कैरियर, राइट? नहीं समझ आ रहा. माई कैरियर, हाँ ये तो मैंने लिखा ही नहीं पहले. My carrier C of T is given as AC cos of 2 pi FCT. ये मेरा कैरियर है बिफोर मॉड्यूलेशन. Eyes on board please. ये मेरा कैरियर है C of T बिफोर मॉड्यूलेशन, AC cos of 2 pi FCT. This is my carrier after modulation, or I can say the modulated signal. And if I focus on this, there is no big change except in the amplitude part of the carrier. Can you see this? मतलब मेरा AC स्केल हो गया है by some factor which is 1 plus KA M of T. Rest this part, जिसमें मेरी frequency and all that है, वो है as it is, उसमें कोई change. क्या? Do you get my point? नहीं आ रहा सर. क्या issue है? Issue क्या है? समझ आ रहा है? Everyone, you got my point? नहीं आया समझ? दिमाग बराबर समझ आएगा. सुनो मेरी बात. मैंने ये कहा ये आपका कैरियर है बिफोर मॉड्यूलेशन. आपके एम्पलीट्यूड पार्ट ना AC. You goes got the cos part, या मोबाइल एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी के फेज स्विच ना. AC आपका कैरियर का एम्पलीट्यूड है बिफोर मॉड्यूलेशन. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में क्या होता है, जो आपकी कैरियर का एम्पलीट्यूड होता है वो वैरी होता है लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशंस. इसका मतलब जो ये स्केल हो रहा है, ये स्केलिंग फैक्टर से 1 plus KM of T से, वो क्या हो रहा है, स्केल आपका AC स्केल हो रहा है, मतलब इस मल्टीप्लाई का साथ. तो इससे क्या होगा, आपके AC पे इफेक्ट पड़ेगा. सपोज फॉर एग्जांपल, हम अगर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, AC का वैल्यू था 2. नाउ 2 मल्टीप्लाइड बाय, से दिस पार्ट कम्स आउट टू बी 2. 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज हाउ मच? 4. ठीक है. इसी तरह अब आपका AC है सपोज 5 into 2 10. तो आपके AC का हर एक पॉइंट स्केल हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर. डू यू गेट माय पॉइंट? सो इट सीम्स एज इफ आप अपना मैसेज सिग्नल सुपर इंपोज कर रहे हो. किस पे? अपने कैरियर पे. आई विल रिपीट. देखिए जी बेटा, आपका सपोज मैसेज सिग्नल था कुछ इस तरह से, आपका मैसेज सिग्नल था कुछ इस तरह से, ठीक है. उसका वैल्यू था से यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 5 था, ठीक है. अब आपने क्या किया, इज इट विजिबल? ये बॉटम वाला एरिया विजिबल नहीं, मुझे कहीं और बनाना पड़ेगा. 1 second, I'll just make it here again. Pick up eraser. ये दीजिए आप 1 second. I'll make this here again. बेटा आप मेरे साथ ही डायग्राम बनाते जाइए. नाउ दिस इज से M of T. आपके मैसेज सिग्नल की जो शक्ल सूरत है वो कुछ इस तरह से है. ये आप बनाएगा सिमेट्रिक ही वेव. कोशिश कीजिएगा इसको सिमेट्रिक बनाने की.
दिस इज योर m of t. नाउ आपका कैरियर will look something like this. मैं इसको एक्सट्रापोलेट कर लेता हूं and I'll just draw this dot 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 line so that it is easier for us to. ये आपका मैसेज सिग्नल है, इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी कि लो होगी? मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी होती है लो, बिकॉज ह्यूमन वॉइस की फ्रीक्वेंसी होती है 3.4 किलोहर्ट्ज. इसमें जो हम फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे दैट इज लॉट मोर हायर देन 3.4. सो अब जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से होगी, इतनी ज्यादा हाई होगी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी बट कोशिश कीजिएगा सेम. यहाँ पे थोड़ा बोर्ड पे ज्यादा ही मुश्किल है. सो इसका एम्पलीट्यूड जो पीक एम्पलीट्यूड था वो क्या था? AM. इसका पीक एम्पलीट्यूड है AC. ये जो है ये एक्सप्रेशन ये जनरल रहेगा फॉर मल्टीटोन एंड सिंगल टोन. ठीक. नाउ आप यहां से हेडिंग शुरू करेंगे जहां से डायग्राम बना रहे हैं सिंगल टोन AM. ठीक है, जहां से डायग्राम बना रहे हैं वहां से हेडिंग क्या शुरू करेंगे? सिंगल टोन AM. सो m of t इज दिस सिग्नल, बट अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो दिस विल बी AM cos of 2 pi f m t. ये ऐड कर लीजिएगा. c of t इज दिस सिग्नल, लेकिन अगर हम c of t को रिप्रेजेंट करें दैट विल बी AC cos of 2 pi f c t. ठीक, समझ आ रहा है? अभी नहीं आना चाहिए ऐसे, क्योंकि अभी मैंने असली पॉइंट बताया है, अभी कुछ मैंने खास पॉइंट बताया है जो आपको समझ आया. ये समझ आ गया ना? ये सुनो, यू गॉट माय पॉइंट कि आपके एम्पलीट्यूड में ध्यान दो. तमो खाए जमाना ये बता, सीधे बैठना, सीधे बैठो. तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट था, मेरे कॉस वाले या फ्रीक्वेंसी या फेज वाले पार्ट के साथ मैंने कुछ नहीं किया. आप देखेंगे जब हम FM की बात करेंगे तब m of t कहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. जस्ट टू गिव एन अंडरस्टैंडिंग, m of t कहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा? आपके फ्रीक्वेंसी पार्ट के अंदर. इस टाइम m of t कहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, कहाँ पे छेड़खानी कर रहा है? आपके एम्पलीट्यूड पार्ट में. समझ के इतना बस समझना है. उसका इफेक्ट हम अभी देखेंगे इस डायग्राम में. उससे होगा क्या वो हम डायग्राम में देखेंगे. Now, if I again extrapolate this thing, अच्छा, इसका जो पीक एम्पलीट्यूड है वो क्या है? AC. एंड ऑब्वियसली नेगेटिव पीक होगा -AC. इसी तरह इसका पीक एम्पलीट्यूड होगा AM, नेगेटिव वाला होगा -AM. ओके, आइज ऑन बोर्ड प्लीज. इसको भी आप थोड़ा सा ऐसे एक्सट्रापोलेट कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए, इसी तरह इसको भी कर लीजिए, एंड दिस पॉइंट ऑल्सो. आप इमेजिन कीजिए ये वाला जो ये पॉइंट है, सपोज दिस इज 1 वोल्ट, दिस इज 2 वोल्ट, दिस इज 3 वोल्ट एंड दिस इज से 5 वोल्ट. ठीक, या ऐसे करेंगे 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट और 50 वोल्ट फॉर एग्जांपल, ना समझने के लिए. नाउ व्हाट हैपेंस इज आपके कैरियर का एम्पलीट्यूड जो है, आइज ऑन बोर्ड प्लीज. आई टोल्ड यू टू एज्यूम इसका 10 वोल्ट है, 20 है, 30. अगर ये आप लिखे भी ना बेटर होगा, बस समझिए 10, 20, 30. ठीक है, आपकी जो इसका एम्पलीट्यूड है कैरियर का, सपोज वो है 1, 2, 3, 4 एंड 5. ऑल्दो इनका एम्पलीट्यूड जो है वो कंपेरेबल होगा, इतना फर्क नहीं होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए
सो मुझे ये बताइए जो 1 एम्पलीट्यूड यहां पे था 1, इसको जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा ये कितना बनेगा 10, शूट अप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सो कैरियर का था 1 लेकिन अब मॉड्यूलेटेड सिग्नल का आएगा मे बी 10। अब कैरियर का जहां पे था 5, हम सीधा 5 पे जाएंगे। इसका है सही नहीं 50 नहीं है अभी, अब उतना मत जाइए। इसका है 20। हम इधर देखेंगे, हमें ये और ये पीक नहीं कंपेयर करनी, हमें रियल टाइम में कंपेयर करना। बिकॉज every point of this carrier signal is varied with respect to the instantaneous value, मतलब उस इंस्टेंट पे क्या वैल्यू है। ठीक है, सपोज यहाँ पे ये था 1 तो ये हम यहाँ पे 10 है। ठीक, अब हम पीक पे जाएंगे तो ये यहाँ पे 20, तो इसका पीक 5 into 20 कितना हो गया 100। so that means हमारे जो कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है या जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड वो स्केल हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। सो कहीं ना कहीं जो मॉड्यूलेटेड वेव होगी उसके एम्पलीट्यूड वेरिएशंस लीनियरली रिलेटेड होंगे विद रिस्पेक्ट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। दैट मींस मेरी मॉड्यूलेटेड सिग्नल के एनवेलप में मेरा मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरिएशन छुपा हुआ है। एंड हाउ विल इट लुक लाइक, इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। तो आप एक पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे से फॉर एग्जांपल AC, और यहाँ से एक पॉइंट लिखेंगे -AC, और इस पॉइंट से आप शुरू करेंगे, इस पॉइंट से शुरू करेंगे थोड़ा इससे और ऊपर, जस्ट सेकंड। सो हम इस पॉइंट से ही शुरू करेंगे। एग्जैक्टली मैसेज सिग्नल के एनवेलप को बनाइए, जो आपका मैसेज सिग्नल है ना उसको बनाइए, मैसेज सिग्नल के एनवेलप को बनाइए, इसको फॉलो कीजिए। इधर पॉजिटिव पीक आएगी इधर, लेकिन इस लाइन को क्रॉस नहीं करना, इधर फिर से नेगेटिव पीक आएगी एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। नाउ ये जो आपने पॉजिटिव एनवेलप किया, देखिए जिस तरह यहां पे पॉजिटिव वैल्यू था, पॉजिटिव पीक था किसका हमारे कैरियर का, तो सपोज +100 आया। अब नेगेटिव पीक है से -100 आएगा समझने के लिए। सो दैट मींस देयर विल बी अ पॉजिटिव एनवेलप एज वेल एज द नेगेटिव एनवेलप। समझ रहे मेरी बात। तो यही एनवेलप जो आपने ऊपर बनाया इसको नीचे से भी बनाइए इसी तरह से। देयर विल बी पॉजिटिव पीक्स एंड नेगेटिव पीक्स अगेन। इसके अंदर आपकी जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका अब एम्पलीट्यूड वैरी होगा विद रिस्पेक्ट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहेगी विद रिस्पेक्ट जो उसकी ऑलरेडी थी। इसका मतलब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी थी FC, इसकी थी FM, इधर जो इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी FC ही होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं है। छेड़खानी किसके साथ है एम्पलीट्यूड के साथ। so that is why it is known as amplitude modulation and this wave is known as amplitude modulated wave. I hope कुछ समझ आया होगा। yes or no? Yes sir. कुछ समझ आया? एक्सपेरिमेंट जो हम करेंगे आई होप ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अगर आप ध्यान दें, the envelope of this wave, if you just find a circuit, कोई ऐसा सर्किट आप लाएंगे जो खाली एनवेलप को कॉपी या एनवेलप को कैच, खाली इन पीक्स को कैच करेगा। इन पीक्स को कैच करने के बाद जिसको एक पॉइंट मिलेगा, दूसरा पॉइंट मिलेगा, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, अगर इसको प्लॉट किया जाए ऑन 0 एक्सिस यू विल गेट द सिग्नल बैक अगेन व्हिच इज योर मैसेज सिग्नल। क्योंकि देखिए हमने मैसेज सिग्नल ली, हमने कैरियर सिग्नल ली, ये दी दोनों सिग्नल दी मॉड्यूलेटर को। मॉड्यूलेटर में आउटपुट पे जनरेट हुआ क्या S of A M of T, राइट। ये सिग्नल हम किसको देते हैं एंटीना को। एंटीना ने ट्रांसमिट कर दी ये सिग्नल, पहुंचाई आगे, ठीक है। आगे पहुंचाने के बाद वहां पे रिसीव किसने की, रिसीवर साइड में एंटीना ने पहले। रिसीवर पे तो रिसीव करके करेगा, क्या दूर वाला करेगा, रिसीवर पे तो रिसीवर साइड ही करेगा, लेकिन रिसीवर साइड में भी पहला कौन सा होगा एंटीना।
ठीक है, एंटीना जब रिसीव करेगी दैट सिग्नल गोज टू द डीमॉड्यूलेटर. ठीक, सिग्नल गोज टू डीमॉड्यूलेटर. डीमॉड्यूलेटर is nothing but it is an envelope detector. इसीलिए आप पहला काम जब आप rather पहला नाम आप देखेंगे demodulator का, the first name of your AM demodulator is envelope detector. उसका काम ही बस यही होता है, अगर उसने received signal का envelope बस कैच कर लिया तो उसको मैसेज मिल गई, क्योंकि मैसेज सिग्नल is just hidden inside the envelope of the modulated signal. You get my point? So any circuit which detects the positive envelope, you need to forget about the negative because it's that same information again, unless and until it is over modulated case. वहाँ बाद में नहीं हो गया है. खैर, ये मैंने एक्सेस से ऊपर बनाया, ये याद रखना. प्लीज रिमेम्बर, ये पॉइंट याद रखना. ये जो ये लाइन है इससे ऊपर है, ठीक. और जब आपका लाइन और आपके पॉजिटिव एनवेलप में कोई डिफरेंस होगी, दिस इज कॉल्ड एज ओवर मॉड्यूलेशन. दिस केस इज ओवर मॉड्यूलेटेड एएम केस. दिस केस इज ओवर मॉड्यूलेटेड केस. यहां पे साइड में लिख लीजिए, when the positive envelope touches this axis, or positive and negative envelope touches this axis. बना लीजिए एक छोटी सी फिगर सी बना लीजिए खुद ही से, उसमें कुछ नहीं बनाना है. एनवेलप बनाइए और एनवेलप को टच कराइए ऐसे. एनवेलप टच कर रहा है, एनवेलप कहां टच कर रहा है? एक्सिस पे. उसको हम कहते हैं क्रिटिकली मॉड्यूलेटेड केस. ठीक है, समझ आया? ठीक, उसको हम कहते हैं क्रिटिकली मॉड्यूलेटेड केस. इतना बना लिया आपने. तो ये वाला केस जो है ये कहलाता है ओवर मॉड्यूलेटेड केस, एंड देयर इज सम टर्म कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन इंडेक्स गिवन बाय म्यू. इस केस के लिए म्यू इज ग्रेटर देन 1 एट पॉइंट व्हेन योर positive envelope does not touch the zero axis, it is above the zero axis, your modulation index mu will be greater than 1. Okay, but at place where it touches the zero axis, modulation index will be equal to 1, and a point where your positive envelope goes below the axis. No, it goes below this axis. आपका पॉजिटिव एनवेलप और नेगेटिव एनवेलप क्रिस क्रॉस फैशन में जाएगा. बोला बोलो क्या बोलो, अभी तो आप तक है, बट दिस इज हाउ इट हैपेंस. तो आपका सिग्नल की फ्रीक्वेंसी तो अभी सेम रहेगी, लेकिन जो मसला हो जाएगा आपका पॉजिटिव एनवेलप कहां चला जाएगा? नेगेटिव रीजन में. सो ये गलत नहीं है, लेकिन इसमें डीमॉड्यूलेट करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है. So now for this mu is less than 1. That is modulation index mu is less than 1. And generally mu is given as AM by AC. Generally mu is given as, लिख लीजिए please, this is important point. Not always, although this is not the correct correlation. mu कैलकुलेट करने के लिए आप AM by AC यूज कर सकते हैं. However, this is not exact value of mu modulation index. So, इसका मतलब जितना AC का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, या मैं कहूं जितना AM का एम्पलीट्यूड कम होगा, उतना म्यू का वैल्यू का छोटा छोटा होता जाएगा. AC जितना बड़ा होगा म्यू उतना कम हो जाएगा ना. ठीक, आप ये देख लेना बाद में. ठीक है, जो आपने मिस किया यू कैन रिकवर, कुछ मसला नहीं होता. सो कितने केसेस हैं हमारे AM के? 3. ओके, कौन कौन सा आप बताइए. हाँ, वो broadcast type was you know आपका दारा नाम. हाँ, शाबाश. वेरी नाइस. इन 3 केस का नाम क्या है? पहले का है ओवर मॉड्यूलेटेड केस, उसको मैंने लिखा ना यहाँ पे.
This one is called as over-modulated case when mu is greater than 1. When mu is equal to 1, this case is called as critically modulated signal या critically modulated case, critically modulated AM signal. When mu is less than 1, this one is called as under-modulated case. जब mu 1 से भी छोटा हो जाएगा इसको हम अंडर मॉड्यूलेशन कहते हैं या अंडर मॉड्यूलेटेड एएम सिग्नल कहते हैं। यही चीज पहले हम देखेंगे आज के एक्सपेरिमेंट में कि हम एएम या एएम को वैरी करके हम एएम को, ये जो हमारा एएम है ना, ये एएम के एम्पलीट्यूड को, क्योंकि कैरियर तो हमारा फिक्स्ड है वो किट के अंदर ही है, हम एएम के वैल्यू को कम ज्यादा करके देखेंगे क्या हमारा सिग्नल अंडर मॉड्यूलेटेड से ओवर मॉड्यूलेटेड से क्रिटिकल मॉड्यूलेटेड मूव करता है कि नहीं। दिस इज पॉइंट नंबर 1। और फिर हम म्यू का वैल्यू निकालेंगे, किससे, AM by AC करके म्यू का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है जी, तो ये ऑब्जर्वेशन हमें आज के एक्सपेरिमेंट में जरूरी करनी है। म्यू इज इक्वल टू AM by AC। ये आपका टेक अवे होगा आज के एक्सपेरिमेंट का। आप देखेंगे 3 सिग्नल्स आप देंगे, अंडर मॉड्यूलेटेड का म्यू निकालेंगे और वहां पे वो वेरीफाई होना चाहिए आपका अगर क्रिटिकल मॉड्यूलेशन आ रहा है। क्रिटिकल मॉड्यूलेशन जब आया ना आपका, आप एम इंक्रीज, तो उस टाइम म्यू का वैल्यू निकलना चाहिए समवेयर नियर टू 1 या 1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। जब आपका ओवर मॉड्यूलेटेड है वो तभी होना चाहिए जब आपका म्यू होगा ज्यादा 1 से, और अंडर होगा तभी जब आपका म्यू का वैल्यू बहुत कम होगा 1 से। ये आपको वेरीफाई करना है, और अगर ये वेरीफाई हो गया तो उसका मतलब जो हमने आपको बोला वो सच था, नहीं। ठीक है जी, इसी में जरा हेडिंग लिखिए, एक्सप्रेशन फॉर single tone AM signal. We assume that M of t is equal to AM cos of 2 pi fmt. This is point number 1. Point number 2, we assume C of t is equal to, is given as AC cos of 2 pi fct. एक छोटी सी मिस्टेक प्रीवियस एक्सप्रेशन में मैंने की। When I told you that we are doing this expression for multitone, multitone में आप बस इसको m of t ले लीजिएगा, उसमें am cos of 2 pi fmt नहीं लीजिएगा, because when I say FM has only one component, that is FM, एक ही फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन मल्टीटोन में मल्टीपल फ्रीक्वेंसी होगा, उसमें होगा FM1, FM2, FM3, FM4। So just please change it. There's a correction in the previous expression. मल्टीटोन के लिए बस आप इतना लिखेंगे that, पहले मल्टीटोन का एक्सप्रेशन जरा लिख लीजिए, बेहतर रहेगा। मल्टीटोन का एक्सप्रेशन S of AM of t मल्टीटोन, हाँ, उसमें आप M of t का वैल्यू नहीं पुट करेंगे, बस वही एक चीज करना है। आप लिखेंगे उसको AC cos of AC1 प्लस, कि मैंने वहां पे वैल्यू नहीं शायद दिया था, नहीं दिया था, ठीक है, AC1 प्लस आप लिख लीजिए तो भी KA M of t cos of 2 pi fct। इसको एक्सपैंड करें तो बस सिंपली हो जाएगा AC cos of 2 pi fct प्लस AC KA M of t cos of 2 pi fct। तो अगर देखा जाए तो आपकी मल्टीटोन मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कैरियर फिर से आ गया, और ये आपका एक्चुअल मॉड्यूलेटेड सिग्नल ये है जिसमें m of t का इफेक्ट है। जिस पार्ट में m of t का इफेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है वही आपका मॉड्यूलेटेड वर्जन। जो आपका बाकी ये वाला पार्ट है, ये खाली कैरियर फिर से आ गया। हालांकि ये भी सवाल आपका होना चाहिए, चलिए कैरियर फिर से क्यों आ गया, बट इट हैज अ रीजन, अदरवाइज डीमॉड्यूलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी आपके लिए अगर कैरियर फिर से हम इंसर्ट ना करें। ये मैंने ये कहा आपका मल्टीटोन का एक्सप्रेशन ये था 1 AC1 plus KA M of t cos of 2 pi fct। ठीक है सर, आप सब देखो, आप लेफ्ट बस। सो ये है आपका सिग्नल, ठीक है। अब मैंने कुछ नहीं किया, AC को मल्टीप्लाई किया, cos को यहाँ लाया, तो आपका ये वाला पार्ट आ गया, एक पार्ट AC cos of 2 pi fct, दूसरा पार्ट है AC आया यहाँ से, cos आया यहाँ से, K of M of t, ठीक है। So as a conclusion अगर देखा जाए मैथमेटिकली, this represents your modulated signal, ये वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि इसमें m of t है, इसमें m of t तक कोई मुदाखलत है ही नहीं, तो ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल नहीं है, ये
इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को असिस्ट करने के लिए सिग्नल हमारा काम आता है। फिलहाल आप इतना याद रखिए, इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है लेटर ऑन, बट वी विल नॉट गो थ्रू दैट पार्ट एज ऑफ नाउ, बट रिमेंबर दिस दैट दिस पार्ट इज आल्सो नेसेसरी। एंड किसी मॉड्यूलेशन स्कीम में हम इस पार्ट को टोटली रिमूव करते टू सेव पावर। अच्छा, दूसरी बात, इसका मतलब हम एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पावर यूज कर रहे हैं हमें कैरियर को ही ट्रांसमिट करने में, जिसमें कोई मैसेज है ही नहीं। आई रिपीट, ये दो पार्ट्स है, मॉड्यूलेट जिसमें एक्चुअल मैसेज है या जो एक्चुअल मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, और ये कैरियर सिग्नल है। कैरियर सिग्नल तो वैसे ही मेरे पास पड़ा ही था लैब में, उसको मैं क्यों भेज रहा हूँ, वो तो वहां भी पड़ा ही होगा। इसका मतलब मैं खामखा में इसको भेज रहा हूँ, और खामखा भेज रहा हूँ तो पावर वेस्ट कर रहा हूँ ना। दैट मीन्स जितना भी अमाउंट ऑफ पावर मुझे एक्स्ट्रा कैरियर भेजने में लग रहा है वो वेस्टेज ऑफ पावर है, समझ आया ये मेरा बोलने का मतलब। और जो जितना पावर इसको ट्रांसमिट करने में लग रहा है वो एक्चुअली यूज ऑफ पावर, ठीक है। नाउ फॉरगेट अबाउट दिस सिग्नल। नाउ इफ वी सी द सेम एक्सप्रेशन फॉर अ सिग्नल, ये वाला पार्ट वाज फॉर अ मल्टीटोन वर्जन, मल्टीटोन। नाउ इफ वी सी द सेम एक्सप्रेशन फॉर अ सिंगल टोन वाला सिग्नल, हाउ विल इट लुक लाइक? आज तो डिमॉड्यूलेशन है, ठीक है, डिमॉड्यूलेशन जाते पाम सकता नहीं। सो इस केस में अब मैंने, जब सिंगल टोन की बात हो रही है, जब सिंगल, क्या बोल रही है आप सबको, मैं सर से पूछूंगा बाद में, रुको तुम। अच्छा, सो इस केस में जब हमारा सिंगल टोन वर्जन है, ठीक है, जब हमारा सिंगल टोन वर्जन है, इस केस में मैं m of t को एज्यूम करूंगा am cos of 2 by m of t, एंड c of t तो खैर सेम ही। देखिए इस बात को सब, इसलिए सिंगल टोन क्यों क्या नंबर 40, सिंगल टोन क्यों क्या ला रहा है? हाँ वाला जैसे चेक सीके जीरो को था जान सीके था जाए भाई जान। Is this the right answer? Yes or no? Yes sir. Is this the right answer? This is the right answer because में एक ही frequency FM है। Okay. Now S, इसको लिखते जाइए साथ साथ, S AM of T for a single tone AM signal will be given as, first expression will be same, AC 1 plus KA M of T into cos of 2 pi FCT, लेकिन ये सिंगल टोन है, therefore I will substitute the value of M of T as 1 plus KA AM cos of 2 pi FMT, हाँ FC नहीं FM, और बाहर अपना ही आएगा cos of 2 pi FCT। अच्छा यहां पे लिखिए, here KA is known as amplitude sensitivity constant, KA is known as amplitude sensitivity constant of an AM modulator। मतलब AM modulator कितना sensitive है for amplitude variations of message signal, AM modulator कितना sensitive है for amplitude variations in message signal, वो किससे डिसाइड होता है? KA से, which happens to be the amplitude sensitivity of your AM modulator। Also KA into AM is equal to mu, ठीक। So what is mu? Where mu is known as the modulation index, KA into AM, जो आपका यहाँ पे ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, this gives us the modulation index। ये वाला दिख रहा है ये पार्ट, ओके। हम डिराइव कर रहे हैं एक्सप्रेशन और जनरल एक्सप्रेशन फॉर योर AM सिंगल टोन सिग्नल। वी सेड when we substitute the value of M of T as AM cos of 2 by FMT, यहाँ पे KA और AM मल्टीप्लाई करके हम इस पार्ट को कहते हैं mu, that is the modulation index, या ये वाला पार्ट gives us the modulation index। उससे क्या पता चलता है? modulation index से, modulation index से क्या पता चल रहा है राइल? modulation index से क्या पता चलता है? modulation index के वैल्यू से क्या पता चलता है?
टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, क्या ओवर मॉड्यूलेटेड है, अंडर मॉड्यूलेटेड है या क्रिटिकली मॉड्यूलेटेड है, ठीक है ना। So I substitute this as AC. I replace KAAM by mu cos of 2 pi FMT into cos of 2 pi FCT. अब इसको यहां से AC आएगा एंड यहां से cos FC आएगा, लाइकवाइज यहां पे भी AC और cos FC आएगा. End result is AC. End result will be AC cos of 2 pi FCT plus AC mu cos of 2 pi FMT into cos of 2 pi FCT. इस वाले पार्ट में दो cos सिग्नल्स आएंगे ना, ठीक. कंस्ट्रक्ट या आल्सो फार्मूला cos of A into cos of B का तो आसान बराबर. Very nice. Actually it is twice cos of A plus twice cos A into cos B is equal to cos A plus B plus cos A minus B. और twice शुरू की हिंसू का डिवाइड इसमें जो एंड रिजल्ट आएगा हमारा. So this part remains same as it is AC cos of 2 pi FCT plus AC mu एम्पलीट्यूड सामने रहेगा ऐसे ही, डिवाइड बाय 2 आएगा. ये 2 क्यों आएगा? बिकॉज फॉर्मूला इज ट्वाइस cos A cos B is equal to cos of A plus B plus cos of A minus B. अब 2 नहीं है यहाँ पे तो cos A cos B will be equal to cos of A plus B divided by 2 plus cos of A minus B divided by 2. ओके, अब वही 2 मैंने यहाँ पे डिवाइड लिखा. तो पहला क्या आएगा? cos of A plus B, cos of 2 pi FC plus FM of T. दूसरा वाला पार्ट मैं यहां पे लिख लेता हूं, प्लस AC mu by 2 cos of, इसको जरा ध्यान से देखना, 2 pi FC minus FM of T. The end result of this process is, the end result of this whole process is, the end result of this whole process is that हमारा जो मैसेज सिग्नल था FM, that got frequency translated to FC plus FM. अब समझ रहे हुआ क्या? The end result is कोसाइन सिग्नल तो कोसाइन सिग्नल ही रहा, ठीक, लेकिन उसकी जो उसका फ्रीक्वेंसी बैंड जो वो चेंज हो गया बाय FC. सो इस वाले बैंड को हम कहते हैं जहां पे FC प्लस FM हो जाएगा, वी कॉल दिस एज अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी या अपर साइड बैंड. दिस बैंड इज कॉल्ड एज अपर साइड बैंड बिकॉज FM को कुछ ऐड हो गया है, वो क्या बनेगा? अपर साइड बैंड. FC minus FM, this is called as lower side band. ठीक है. सो इसका मतलब ये है कि हमारे AM सिग्नल में अब 3 हिस्से आ गए. कौन कौन सा? पहला देखो, आप इस तरह से लिखिए, ये है आपका कैरियर वाला रिपीटेड या एडिशनल कैरियर, ये आपका हो गया अपर साइड बैंड, ये आपका हो गया लोअर साइड बैंड. सो आप लिखिए, द रिजल्टेंट AM सिग्नल the resultant AM signal, the modulated signal, consists of 3 parts. First one, the additional carrier. First one, the additional carrier. इसको additional में इसलिए बोल रहा हूँ because ये खाम खाम में ट्रांसमिट हो रहा है फिलहाल के लिए हमें लग रहा है.
सेकेंड अपर साइड बैंड, थर्ड लोअर साइड। ठीक है, अब देखिए यहीं पे मैं आपको एक चीज बता देता हूं। ये तो हो गया एएम के बारे में। हमने रियलाइज किया ये कैरियर जो है खाम में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। अब जब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे नेक्स्ट लैब में, उस टाइम हमने चूंकि आज रियलाइज कर लिया सी ऑफ टी हमारा पावर वेस्ट कर रहा है, और आप क्लास में पढ़ेंगे ये अराउंड 66.66% पावर वेस्ट करता है। तो ये वाला कैरियर पार्ट है ना, ये लगभग 66.66% पावर वेस्ट करता है आपका। ठीक है, सो इज इट बेटर हम इसको सप्रेस करें या ब्लॉक करें? तो नेक्स्ट मॉड्यूलेशन स्कीम जो हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट लैब में करेंगे, उस केस में हम इसको ब्लॉक करते हैं और इतना ही सिग्नल आगे भेजते हैं, which happens to be an efficient modulation scheme in terms of power। लेकिन जो मैंने कहा ना पॉइंट, डीमॉड्यूलेशन थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। जितना हम इसके साथ छेड़ते जाएंगे, मतलब काइंड ऑफ मैनिपुलेट करते जाएंगे टू इंक्रीज टू डिक्रीज पावर कंजप्शन एंड ऑल दैट, उतना डीमॉड्यूलेशन फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो उस स्कीम में खाली 2 साइड बैंड्स होंगे, इसीलिए उसको कहते हैं DSBSC, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर हमने सप्रेस कर दिया। ओके, ये हो गया दूसरी लैब जो हम करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वाली लैब करेंगे, उसमें हम रियलाइज करते हैं ये जो साइड बैंड्स है ये दोनों रिडंडेंट सेम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अरे भाई इसमें भी कोसाइन ही सिग्नल, ये भी कोसाइन, समझाने के लिए फिलहाल तो मुझे एफएम का बस पता चला, तो ये दोनों रिडंडेंट है। तो फिर हम कहते हैं उस टाइम सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। आई विल रिपीट, दिस इज नोन एज डबल साइड बैंड विद कैरियर। इसका पहला नाम है डबल साइड बैंड विद कैरियर, मतलब कैरियर लेके। यहां हम कहते हैं इसको एएम सिग्नल। सिंपल, एक एएम सिग्नल इज अ सिग्नल व्हिच इज सेम एज डबल साइड बैंड विद कैरियर सिग्नल। दूसरा हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। उसमें हमारे 2 साइड बैंड हम बेचते हैं, लेकिन कैरियर को हम सप्रेस कर देते, तो हमने 66.66% पावर सेव किया होगा। फिर तीसरी मॉड्यूलेशन स्कीम, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। एक तो कैरियर भी सप्रेस है और साइड बैंड भी एक ही है, लेकिन फिर वही बात, डीमॉड्यूलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो एएम के लिए हम सिंपल एनवेलप डिटेक्टर यूज कर रहे थे। अब DSBSC के लिए एनवेलप डिटेक्टर शायद हमारा काम न करे, और SSBSC के लिए तो करेगा ही नहीं। वहां पे हमें एक सिंक्रोनस डिटेक्टर चाहिए, बहुत खतरनाक किस्म का डीमॉड्यूलेटर। खतरनाक नहीं है मतलब, नाम से इट्स लाइक बहुत एफिशिएंट है। तो सिंक्रोनस डिटेक्शन हमें करनी पड़ेगी। सो ये लकीली हमने एक्सप्रेशन देख लिया, और इससे हमारी 3 लैब्स के लिए आइडिया थोड़ा मिल गया कि क्या कर रहे हैं या हम कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, विद दैट आसिफ सर विल स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स फर्दर। ये आपका जो है किट है विच कैन बी यूज्ड एज, कैन यू जस्ट शो हियर, जो मैं अभी बता रहा था, DSBSC। हाँ ये आएगा, लेकिन आप यहाँ से आइए फिर, या 2 ग्रुप करके करेंगे, एक ग्रुप को। ठीक है जी, ठीक है, लेकिन यू हैव ओनली 5 मिनट्स और 7 मिनट्स एट द मैक्स। ये नहीं दबाओ। DSB दैट इज डबल साइड बैंड विद कैरियर भी इसमें आएगा, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर भी आएगा, और सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर भी आएगा। ठीक है, चलिए जी, मुझे तो लास्ट लैब में मैंने आपको ये डिस्कस किए डिफरेंट ब्लॉक्स जो यहाँ पे है। ये आपका फर्स्ट ब्लॉक है विच हैपन्स टू बी द इनपुट ऑडियो एम्पलीफायर। मतलब अगर आप यहाँ से माइक में बात करेंगे तो आपकी आवाज़ ही मॉड्यूलेट हो जाएगी, रादर एक्ट करेगी एज मैसेज सिग्नल, और उसको हम यहाँ पे फिर डीमॉड्यूलेटर से, यहाँ पे एक हेडफोन का भी ऑप्शन होना चाहिए। ये देखिए, इस ब्लॉक से आउटपुट ऑडियो एम्पलीफायर यहाँ पे एक स्टूडेंट कान में लगाएगा, और एग्जैक्टली वही बात सुनना चाहिए जो हमने यहाँ से भेजी। और ये जो आपका नेक्स्ट ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर 2, दिस इज़ योर AM, या इसको हम कहते हैं डबल बैलेंस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर। फिलहाल के लिए बस आप AM मॉड्यूलेटर याद रखिए, AM मॉड्यूलेटर आपका ये है। दूसरा ब्लॉक जो आपके बाकी ब्लॉक्स है, ये आपका प्रोडक्ट डिटेक्टर है, मतलब दिस इज़ योर डिटेक्टर मीन्स डीमॉड्यूलेशन ब्लॉक है आपका। ठीक है,
दिस इज अगेन एन AF मॉड्यूलेशन सिग्नल जनरेटर, ये आपका ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करता है जो हम फिलहाल के लिए यूज़ करेंगे। देखिए फर्स्ट थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। आपका ब्लॉक नंबर 4 जो है, यहाँ से मैंने सिग्नल एक लिया है, वो दिया आपके किसको, आपका ब्लॉक नंबर 2 क्या है, AM मॉड्यूलेटर, ठीक। दैट मीन्स M of T में दे रहा हूँ। ये जो आप सिग्नल है कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें AF मॉड्यूलेटर सिग्नल में दूसरा पॉइंट क्या दे रहा हूँ, ये सिंपल ग्राउंड है, ठीक है, दिख रहा है आप, दिख रहा है ना। तो ये हो गया मेरा ग्राउंड, ये हो गया मेरा जो सिग्नल जनरेट हुआ ऑडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल जनरेटर से। इससे मैं इसका एम्पलीट्यूड वगैरह वेरी करा सकता हूँ, ठीक है, इससे इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी करा सकता हूँ, लेकिन फॉर द टाइमिंग विल नॉट डू एनीथिंग जब तक हम पहले इसको एक बार अफर्म कर लें। आपको ये एडिशनल जंपर यहाँ पे लगाना पड़ेगा इस किट के लिए, ये किट की सेटिंग्स में आता है, ऑल्दो वी हैव सम रिहोस्टेड और पोटेंशियोमीटर टाइप ऑफ थिंग हियर, सो यू विल अप्लाई दिस जंपर ओवर हियर। हो गए 2 पॉइंट्स, ठीक है, क्लियर है वहाँ बोझना। नाउ दिस मॉड्यूलेटर नीड्स वन मोर सिग्नल, विच इज दैट सिग्नल, कैरियर सिग्नल, और वो कैरियर सिग्नल यहाँ पे देना है, ठीक है ना। सो लेकिन कहाँ से आएगा वो कैरियर सिग्नल, आपकी इस ब्लॉक से आएगा जो आपका ब्लॉक नंबर है 11। ब्लॉक नंबर 11 का क्या काम है, ब्लॉक नंबर 11 का काम है ये आपका RF सिग्नल, दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है, इशू ब्लॉक। तो कहाँ से सिग्नल जनरेट हो रहा है, इसका आउटपुट यहाँ पे है, ठीक, इशू सोन आउटपुट RF आउटपुट दिख रहा है ना आपको, और इसको मैं कहाँ दे रहा हूँ, आपके मॉड्यूलेटर का